So what happens is that we are not only having the resistances in series or in parallel, but at times the network is connected in such a manner that you find three resistors. They are connected. If they are connected nose to the tail, then it is called as a delta connection circuit. Delta connected circuit, है ना? Delta connected circuits. What are delta connected circuits? When three resistances are connected nose to tail, then it is called as a delta network. Okay, so it would look something like this. These are three resistances. I am naming them as R1, R2, R3, and these terminals I am naming it as A, B, and C. Okay. The other name for delta connection is also mesh connected networks. Mesh connected is another name. And another type of a connection which comes when you are solving a network is your star connected circuits. Star connected में क्या होता है? When the three resistors are connected to a common point, then such a network is called as a star connected network. Okay, when three resistances thank you sir. When three resistances are connected to a common point, say O, then such a network is said as a delta connection or star connection. It is symbolically we can represent it in this manner. अगर इस प्रकार का कहीं आपको symbol दिखता है, इसका मतलब है कि कैसा connected है circuit. It is connected in the star connected network. It is a star connected network. इस प्रकार का symbol दिखता है तो इसको बोलते हैं delta connected system. ठीक है ना? इसका डायग्राम बना देती हूँ स्टार का. ये भी टर्मिनल्स है ए बी एंड सी और इसको नाम दे दिए मैंने यहाँ के रेजिस्टेंसेस को आर ए आर बी और आर सी. ठीक है. एक चीज में इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ये दोनों ना इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट नेटवर्क्स होते हैं, डेल्टा कनेक्टेड एंड स्टार कनेक्टेड. यानी कि जो इन दोनों टर्मिनल के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ए और बी के डेल्टा के केस में, वही आपको ए और बी ऑफ दी स्टार कनेक्शन भी मिलेगा. मतलब जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है ना, ये दोनों का एकदम सेम निकल के आता है. इसीलिए हम इसको आसानी से डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या स्टार टू डेल्टा हम इसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है ना? तो इसका डेरिवेशन ही है विच वी आर गोइंग टू टेक टुडे. ये स्टार और डेल्टा सबको समझ में आ गया क्या कैसे कैसे नेटवर्क्स होते हैं? इस पे किसी को डिफिकल्टी? नो मैम. नो मैम. ओके, तो फर्स्ट वी विल बी टेकिंग द डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन.
So the replacement of delta or mesh by equivalent star system or a star network is known as delta to star transformation. Okay, so this is like the delta and the star, they should be electrically equivalent. The two systems will be equivalent if the resistances that is measured between any of its pairs of the lines will be same of the system when the third line is open. So if I am drawing a delta here, and naming the terminals A, B, C, and naming the resistances R1, R2, R3, and my agenda is to get its electrical equivalent. Yani ki I have to convert it from delta to the star, and I should get the values of RA, RB, and RC in terms of these R1, R2, R3, then I can easily do it. So it is like A, B, and C. This is your RA, RB, and RC. ठीक है. So let's assume that the resistances between the two terminals, that is between the B and the C. Okay, B and the C इन द डेल्टा सिस्टम, इसका कितना वैल्यू आएगा? इसका अगर आप अपन ऐसा अज्यूम करें कि B और C के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, मतलब अगर हम इधर से देखेंगे तो कितना इसका RBC आएगा, इक्विवेलेंट RBC कितना आएगा? ऐसे समझिए कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ से, है ना. तो ये अपन को यहाँ इस पॉइंट पे आके अपन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा दो पार्ट्स में, और ये करंट इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस में सेम करंट गया. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में. और ये दोनों का, हाँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में. यानी कि R3 जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है R1 प्लस R2 के, है ना. तो इसका अगर हम फाइंड आउट करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए R3 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना ही आएगा. सब करे इसको सॉल्व. आ रहा है ना? ठीक है. तो मैंने इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1. ये मैंने स्टार के केस में किया है ना. इन दोनों यानी कि मैंने क्या किया है, आई हैव फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, the resistance between terminals B and C. In both the cases we have to find out B and C. In the case of the delta में मुझे ये इक्वेशन मिलेगा. Likewise अगर मैं इस वाली केस में देखूं फॉर द स्टार कनेक्शन, इसके अंदर मेरे को क्या मिलेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस. मैं ऐसे समझूंगी कि एक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और ऐसे निकल के आ रहा है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल तो कहीं से कनेक्टेड ही नहीं है. मेरा कनेक्शन तो कहाँ से है? B और C, इस प्रकार से कनेक्शन है. तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, यहाँ तक आएगा. ये पाथ ले सकता था, लेकिन क्योंकि ये तो ओपन सर्किटेड है तो कोई सेंस ही नहीं यहाँ से करंट जाने का, तो सारा करंट किधर को फ्लो हो जाएगा? ऐसे फ्लो हो जाएगा. इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? C और RB एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है हमसे ना. तो RC प्लस RB या RB प्लस RC एक ही चीज है. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा और स्टार इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होता है, माने कि इसकी जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ना डेल्टा में,
उतनी ही ये आरबीसी की, अगर आप तुम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे ना, तो इसका जो कॉम्बिनेशन जब सॉल्व करोगे तो मान लो आरबीसी 5 ओम्स अगर तुम्हारे डेल्टा केस में आ रहा है, तो वैसे ही आपको इन द केस ऑफ द स्टार भी निकलेगा, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर देंगे इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट हियर, since the two systems are identical, रेजिस्टेंस, ये प्लीज माइक ऑफ करिए, बाकी किस बच्चे का भी ऑन है तो माइक ऑफ करिए। रेजिस्टेंस measured between the terminals B and C in both of the systems must be equal, that is this equation number 1 and equation number 2, we have to equate them. So your answer, your will be left with RB plus RC, it is equals to R3 into R1 plus R2 upon R1 plus R2 plus R3. Let me name this as equation number 3. Okay, similarly, give me what is the resistances in between the terminals C and A and in between the terminals A and B. मैम एक डाउट था मैम, एक मिनट बेटा, है ना, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स C एंड A आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपको फाइंड करना है A एंड B। हाँ, किस बच्चे को, कौन बच्चा बोल रहा था? मैम विशाल वर्मा। विशाल, ओके, टेल मी विशाल, व्हाट हैपेंड? मैम जब हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे, हाँ, तो मैम किस टर्मिनल को मैम ओपन सर्किट रखेंगे? अभी तुमने कौन से टर्मिनल्स कंसीडर करे हैं? अभी हम बीसी को मैम, ए को मैम ओपन सर्किट रखा और बीसी को कन्वर्ट किया था। बस एक एक, जब आप एक एक कॉम्बिनेशन उठाएंगे, यानी कि आप बीसी टर्मिनल उठाएंगे तो आपको ए को ओपन रखना है, जब आप सी ए उठाएंगे तो आपको बी को ओपन, जब ए बी उठाएंगे तो सी को ओपन रखना है, और उसके बाद आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है विशाल? ओके मैम, ओके मैम, चलिए थैंक यू। चलिए, और बताइए मुझे क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। मैम RAC मैम डेल्टा के लिए मैम R2 मैम सीरीज में है R1 प्लस R3 के साथ पैरेलल में है। R2 पैरेलल में है? यस मैम, R2 मैम पैरेलल में है, R1 और R3 सीरीज में है। देखते हैं, कौन से वाले का बोला तुमने? सीए टर्मिनल को कंसीडर किया तब ना? यस मैम, सीए टर्मिनल को इक्वेशन बनेगी मैम R2 इंटू R1 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके ओके, ये हमारा सर्वेश बोल रहा है? नो मैम, पीयूष बोल रहा था, ओके ओके, ठीक है ना। देखो, अगर तुम डेल्टा की बात करोगे तो सी और ए हमको कंसिडर करना है, यानी कि ये हमारा डेल्टा कॉम्बिनेशन है, और इसमें मैं इस वाले टर्मिनल को भी रब कर देती हूँ, और यहाँ पर सी और ए कंसिडर करना है मुझे। एक मिनट, है ना यार, मेरा पेन। सी और ए कंसिडर कर रही हूँ मैं, है ना, सी और ए यहाँ से सप्लाई जा रही है, ये दोनों टर्मिनल कंसिडर करना है अभी मेरे को। तो मुझे कैसे समझ में आएगा? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर आकर कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, और ये R2 और R3 सीरीज में कनेक्टेड है, और R1 पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। विशाल नहीं, विशाल नहीं, पीयूष, तुमने बोला था कि R2 और ऐसा कुछ बोल रहे थे ना तुम? हाँ, मैंने बोला था R2 पैरेलल में होगा।
R2 नहीं पैरेलल में होगा। देखो ये करंट ऐसे फ्लो होगा ना, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से इस पे जाएगा और फिर इधर से जाके फिर ये दोनों सम होके इधर जाएंगे। इसका मतलब है कि यही वाली करंट इस वाली में भी फ्लो हो रही होगी। R3 और R2 में सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, यस मैम। और ये दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है। यानी कि तुम्हारा आएगा फाइनल जो रहेगा उसका लिखेंगे अपन, तो इट वुड बी R डेल्टा के केस में डेल्टा के केस में R2 plus R3 into R1 बटा R1 plus R2 plus R3। RCA will be equals to your R1 into R2 plus R3 divided by R1 plus R2 plus R3। और सिमिलरली अगर आप स्टार को देखेंगे तो स्टार में कैसे होएगा, स्टार में हमको कंसिडर करना है A और C टर्मिनल है ना, तो ये B वाला हटा देंगे अपन, कनेक्शन B का कनेक्शन। ठीक है, और फिर अरे यार ये यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे, इसको हटा देंगे ये वाले कनेक्शन को। तो हमारा जो करंट फ्लो होएगा वो कैसे फ्लो होगा, इसको ओपन सर्किट रखना, ये वाले में ओपन सर्किट रखना, तो करंट जितना है वो यहाँ से फ्लो होके ऐसे फ्लो होके ऐसे चले जाएगा। इसका मतलब है RC और RA एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमारा स्टार इक्विवेलेंट हो जाएगा बिटवीन द आर्म्स दिस RCA, इस वाले केस में स्टार की केस में हो जाएगा RC प्लस RA। अब इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ इक्वेट कर देंगे, तो RC प्लस RA इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल रही हूँ। वैसे ही मुझे RAB बताइए, डेल्टा के केस में क्या आ रहा है, RAB इन द केस ऑफ स्टार में क्या आ रहा है बताएं। R2 into R1 plus R3 upon R1 plus R2 plus R। पलक, यस मैम। हाँ पलक बताओ बेटा, ये हमारा नेटवर्क है, बताइए कैसे आपको A और B के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है ना, अभी A और B के बीच का, ये A और B। यस मैम, तो R2 पैरेलल हो जाएगा R1 plus R3 के। वेरी गुड है ना, इसके अंदर डेल्टा में R3 और R1 सीरीज में है और उसके साथ में R2 पैरेलल में है, तो हम उसको लिख लेंगे। It is equals to your R2 into R1 plus R3 divided by R1 plus R2 plus R3। सिमिलरली स्टार के केस में अपन देखेंगे, स्टार के केस में देखेंगे तो मुझे कंसिडर करना है A और B, ये दोनों टर्मिनल्स कंसिडर करना है, तो मेरा A और RB और RA सीरीज में आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द स्टार की वैल्यू होगी RAB इज इक्वल्स टू RA प्लस RB। ठीक है, वी विल इक्वेट द टू, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट होते हैं, तो RA प्लस RB इज इक्वल्स टू 2 इंटू R1 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। Okay, now what you have to do is you add all the three equations, that is equation 5, 4 and 3, you add it and tell me what is the values of what you will get। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सारे जोड़ दो और राइट हैंड साइड को सारे जोड़ दो, तो क्या आंसर आएगा आपका, एडिंग इक्वेशन 3, 4 and 5,
आपको आंसर मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ, ये दिख रहा है ना अपन को आर ए, ये भी एक आर ए है, तो 2 टाइम्स ऑफ आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी आएगा आपका एल एच एस, और आर एच एस में होगा 2 इंटू आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, और ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा एंड you will get RA plus RB plus RC is equals to R1 R2 plus R2 R3 plus R1 R3 divided by R1 plus R2 plus R3. I will name this as equation number 6. Now what you have to do is subtract equation numbers 3, 4 and 5 from equation number 6. What you will get? Subtract equation. First you have to subtract equation number 3 from equation number 6. Then you have to subtract equation number 4 from equation 6 and then equation number 5 from equation 6 and give me the answers of RA, RB, RC. कितना आया? मैम आर ए इक्वल टू R1 R2 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3। राज, ओके राज। और दूसरा आरबी और आरसी की क्या है बेटा वैल्यू? एक मिनट में आरबी आ जाएगा R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और आरसी? R1 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। वेरी गुड। ठीक है, तो आपका वैल्यूज आ जाएगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3, 4 and 5 from equation 6 respectively. We have what we have is RA will be equals to R1 into R2 upon R1 plus R2 plus R3, comma RB will be equals to you will have to name this as equation number 7. RB is equals to R2 into R3 upon R1 plus R2 plus R3. This is equation number 8. And you have RC is equals to R3 into R1 upon R1 plus R2 plus R3. ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया ये सभी लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। हमने देखो क्या किया है, बेसिकली ये जो हमारा एक डेल्टा नेटवर्क था, इसको एक शॉर्टकट है इसको समझने का, ठीक है ना।
अब हमेशा है ना अपन लोग को, जैसे अगर तुमको स्टार कनेक्टेड दे दिया है और तुमको उसका इक्विवेलेंट मतलब डेल्टा कनेक्टेड दे दिया, उसको तुमको स्टार में कन्वर्ट करना है, तो क्या करिएगा, ऐसे डेल्टा बना दीजिएगा और डेल्टा की वैल्यूज थी R1, R2 और R3 और इसकी वैल्यूज है RA, RB और RC, यही है ना। ठीक है, तो तुम्हारा जो RA की वैल्यू हो जाएगी इन रिस्पेक्ट टू, यानी कि स्टार क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट टू द डेल्टा, वो क्या होगा, ये वाले की जो वैल्यू होगी दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय तीनों का सम, यानी कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसे ही अगर आपको RB फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। और तीसरा वाला है RC, यानी कि ये वाले का फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों जो उसके एडजेसेंट रेजिस्टर्स लगे हैं उनका प्रोडक्ट R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, ऐसे आप इसको याद रख सकते, क्योंकि आपको क्या है, ऐसे नेटवर्क दे दिया जाएगा और आपको है ना सॉल्व करने के लिए उसको स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना, उसी नेटवर्क के अंदर एक स्टार क्रिएट कर देना और ये वाले की फाइंड आउट करनी वैल्यू। तो ध्यान ये रखना है कि डेल्टा में जो रहता है न्यूमरेटर अलग अलग होते हैं और डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी कि R1 प्लस R2 R3 इन तीनों का सम होता है। ठीक है ना, और ऊपर वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस के आजू बाजू वाले रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, हमारे इंटरेस्ट वाले रेजिस्टर के आजू बाजू वाले रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आया, शॉर्टकट समझ में आया आपको, कैसे ऐसे आपको सॉल्व करना रहेगा तो कर सकते हैं अपन। इससे Yes, आपको ma'am. एक तो जल्दी जल्दी याद तो आ जाएगा आपको, इसका कितना आंसर होता है ये तो एकदम से याद आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो तुम सीधे ये शॉर्टकट से ही निकाल तो सकते हो। और मेथड क्या लगाया अपन लोगों ने, एक एक टर्मिनल्स के बीच में, मतलब स्टार डेल्टा में एक एक दो टर्मिनल्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, स्टार में दो टर्मिनल्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, उन दोनों को फिर इक्वेट कर दो बारी बारी से। इक्वेट करने के बाद उसको पूरे को ऐड कर लो और ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे प्रत्येक एक एक जो आपने दो दो टर्मिनल्स के रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट फाइंड किए थे उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपको वो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसमें किसी को डिफिकल्टी है बताएं, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन समझने में किसी को डिफिकल्टी है? नो मैम। वेरी गुड। अब ऐसा केस हो सकता है कभी कभार कि क्या होता है कि जो डेल्टा के सारे ये वैल्यूज है ना, सेम ही वैल्यू है, मान के चलो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये तीनों के तीनों 1 ओम्स के हैं या एक ही वैल्यू के हैं, तो उस समय आपका जो जो स्टार का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, RD इंटू RD अपॉन RD प्लस RD प्लस RD, इट इज इक्वल्स टू RD स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 3RD, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी RD अपॉन 3। ये कभी ऐसा कंडीशन आता है जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए है, ये फॉर्मूला है ना, आपको कभी ऐसा न्यूमेरिकल में आ गया कि ये जो डेल्टा कनेक्टेड के सारे रेजिस्टेंसेस है इन्हीं की एक ही वैल्यू है, यानी कि R1 और R2 और R3 सब बराबर कितने हैं, RD के बराबर है, इनकी एक ही वैल्यू है। और आपको RS फाइंड आउट करना है, इनकी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको फॉर्मूले में आप डाल देंगे तो आपको कितना मिलेगा, RD अपॉन 3। ठीक है, अगर मैंने बोला 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है तो मतलब डेल्टा में सारे के सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 है, तो आपका स्टार की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। अगर 3 बोल दूं सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो सीधे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी वैल्यू है उसका इक्विवेलेंट स्टार की, 1 ओम्स। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम कल वी विल डू इट। टुडे आई विल बी स्टॉपिंग द क्लास नाउ।
I think so my lap is hang. This is not responding. तो मैं ना अभी आप लोगों का अटेंडेंस क्रिएट कर दूंगी, तो आप लोग उस पर मार्क कर लीजिएगा, है ना। ये मैं इसको स्विच ऑफ करने वाली हूँ लैपटॉप को। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।